That means slide number 248. Fiber reinforced concrete especially meant for the to increase the okay. Fiber reinforced concrete is the purpose of the fiber reinforced concrete is to increase the flexural strength. Normally concrete is very strong in compressive strength, but very weak in tensile strength. But second thing is flexural strength also square root of FCK. That means flexural strength is equal to, that means 0.7 into square root FCK. That is the formula given in the IS 456. That means flexural strength of the concrete is equal to 0.7 multiplied by square root of FCK. FCK is the characteristic compressive strength. But the flexural strength you want to increase, there is a one option that is called the fibers. You have to introduce some fibers. That means Recron fibers, polypropylene fibers, steel fibers, and asbestos fibers, and so much fibers are nowadays available. Let me do. Some of the common deficiencies in the concrete. Concrete means what are the various drawbacks, disadvantage. It is concrete is very low tensile strength and low post cracking capacity, and brittle and low ductility value. Ductility means suppose if you are rotating top and bottom, after that it will be very brittle metal, just like a piece of chalk. Piece of chalk, you see, suppose it is very brittle material. And limited fatigue life. Fatigue means suppose you are worn top and bottom, then it will be breaks into pieces. Not capable to accommodate the large deformations. That means it can't take any deformations. Deformations means suppose the settlements. Next, low impact strength. Suppose if anything is dropped on the concrete slab will be broken into small irregular pieces, and it should not coming back to the original shape, because that will act just like a glass plate. Glass plate, once it is broken, it should not be attached again. Next, FRC, discontinuous and discrete fibers dispersed in the concrete matrix result in the 3D system of the crack control and the crack arrest mechanism, and reduce all the crack characteristics and increase the first crack strength and flexural strength. That means ये fiber reinforced concrete का बता रहा है. Increase the ductility. ये previous slide it is given the lot of the disadvantages. Now if you are added these fibers, then what happens? Increase the toughness, impact, and fatigue life. That means whatever the drawbacks we have stated earlier, the drawbacks will be mitigated while you are introducing the fibers. Next, mechanism of action. That means what type of mechanism is involved in the fiber reinforced concrete? Let we see. The strengthening mechanism of the fibers involves the transfer of the stresses in the matrix to the fibers. That means in the bottom layers, generally we are introduced steel fibers. Steel rods, because to take care of the tensile forces. Suppose in case of the beam, you are introducing the steel reinforcement at the bottom layers, because the top fibers are subjected to compression and bottom fibers are subjected to tension. Tension this concrete won't take. Little bit it can take, but we generally will omit that. That means we generally won't consider any tensile strength of the concrete. A little bit it will take, but we can't trust that little bit tensile strength. For that purpose, we are introducing the steel rod. But in case of the flexural strength, that means approximately 1/4. Suppose a M20 grade concrete is there. Suppose 4 Newton per mm square flexural strength is there. So little bit we can trust on the flexural strength. But you want to increase that flexural strength, you have to add some fibers. Next, stress is shared for the fibers in the matrix and in the tension zone until the matrix cracks. Suppose in the bottom layers, instead of the steel rods, if you are introducing some fibers, steel fibers or something, because of the action of the flexural strength, the concrete will bear some amount of the more amount of the flexural strength. For that purpose, some pavements, especially nowadays, they are using the fiber reinforced, the polypropylene fiber reinforced concrete. Next, pull-out resistance depends upon the bond strength. Pull-out means suppose if you are inserted a rod in the 15, that means 2 centimeters rod in the concrete. After hardening the concrete, you want to pull out from that. That means generally around the periphery of the bar, what happens? The bond strength will take action into picture. So to increase with the fiber length, the bond strength also increases. Since the pull-out resistance is proportional to the interfacial area means the bar perimeter.
That means up to what extent you are inserted in the concrete, that will also act as a count into the account. Now the more effective bond will be observed if fiber reinforced also fiber reinforced concrete has been used. Thus the fiber efficiency increases with the length and the diameter. This is called the aspect ratio. The aspect ratio means suppose one fiber is there, L by D ratio, length of that fiber divided by diameter of that fiber. Suppose you are using the steel fibers. Steel fibers means just like I can say that is a binding wires. Binding wires, that means not more than the 1 mm and 1.5 mm thick binding wires. Generally in the concrete slabs you are using that binding wire is cut it into small pieces. Small pieces matlab 1 inch or 1.5 inch. That length you know, that means 1.5 inch, and the diameter is how much? 1 mm. That means L by D is called the aspect ratio. The fiber efficiency increases with this aspect ratio. If the aspect ratio is increased, the efficiency of the fibers also increases. Here आपका जो भी फाइबर का जो लेंथ इंक्रीज किया है, लेंथ इंक्रीज किया, L is in the numerator, length is in the numerator, diameter in the denominator. सपोज आपका जो भी फाइबर का लेंथ बढ़ गया तो आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. बिकॉज वाई लेंथ ऑफ द फाइबर बढ़ गया तो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एक्शन. बॉन्डिंग मीन्स सपोज मैंने एक सरिया ले लिया है, आई हैव टेकन वन स्टील रॉड फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, मैंने मान लीजिए 10 सेंटीमीटर कंक्रीट के अंदर मतलब घुसा के छोड़ दिया, मतलब 28 डेज में मैं पुल आउट किया. इंस्टेड ऑफ 10 सेंटीमीटर मैं अगला कंक्रीट क्यूब में मैं 10 सेंटीमीटर की जगह पे मैं 20 सेंटीमीटर अंदर तक मतलब घुसा के रखा है. दैट मीन्स आई हैव इंसर्टेड ए रॉड अप टू द 20 सेंटीमीटर, डबल ऑफ द फर्स्ट वन. व्हाट हैपेंस? टू पुल आउट इज वेरी lot of force is required, because you are in the second case you are inserted the bar into very greater depth, almost double of the first one. That's why in the first one whatever the force required to pull out that bar, the second case you need the almost double, because the bond stress will came into picture. Similarly here if the fiber length is increased, the fiber, that means flexural strength is also automatically improved. But generally in case of the fibers we will go for the aspect ratio. That means in the fiber reinforced concrete, aspect ratio means length of the fiber divided by diameter of that fiber is called the aspect ratio. If the efficiency of the fiber reinforced concrete is increased when the aspect ratio is increased. Next, the contribution of the fibers depending upon the fiber material. That means the total strength of the flexural strength is increased based on the what type of the fibers you have used in that particular concrete. And length, that means how much length of the fibers you are introduced. Next, diameter of that fibers. That means both this ratio, L by D ratio, is called the aspect ratio of that fiber. Next, volume concentration in the matrix, and the low volume less than, that means 0.5%. That means weight of the concrete. That means whatever the concrete weight, you are added 0.5% weight of that concrete, or some people will say the weight of the cement also they will add it. Anyway, that means both ways people will add it, but they will consider the total weight of the concrete also. Some people will consider the total weight of the cement, whatever the cement you are added in that 0.5% of the fibers. Next, moderate 1.2%, and high volume means more than 3% of fibers. Here the fiber reinforced concrete is the major problem is mixing. The mixing of the fibers is not uniform, because lot of problems will be faced in the fiber reinforced concrete mixing. Because जो भी fibers है आप concrete में mix करोगे वो uniformly mix नहीं होगा, except steel fibers. Steel fibers है, it is having some weight and length. That's why वो steel fibers है uniformly mixing हो सकता है. But जो polypropylene fibers है, Ricaron fibers है ना, पॉलिस्टर फाइबर्स है, ये क्या करेगा, एक जगह पे चिपक जाएगा. दैट मीन्स वो है यूनिफॉर्मली कंक्रीट में, थ्रू आउट कंक्रीट में यूनिफॉर्म स्प्रेड नहीं हो पाएगा. बिकॉज दीज मटेरियल्स है मतलब वेरी फाइन, मतलब जस्ट लाइक आपका शर्ट के अंदर है जो धागा रहते हैं ना, दैट मीन्स पॉलिस्टर शर्ट में. नाउ यू सी वो पॉलिथीन फाइबर्स है कितने, दैट मीन्स आपने एक 2% फाइबर्स है आपने डाल रखा है कंक्रीट में. ये 2% फाइबर्स है ओनली एक क्यूब के अंदर और एक बीम के अंदर आ जाता है, बाकी एरिया है नॉर्मल कंक्रीट है. दैट मीन्स व्हाट हैपेंस, दैट मीन्स एक जगह पे चिपक जाता है. दैट मीन्स ऑल द फाइबर्स विल रीच टू द वन कॉर्नर इन द मिक्सिंग. आपने कंक्रीट मिक्सर में फाइबर ऐड किया है, मतलब ये पूरा फाइबर्स है ना एक जगह पे, मतलब एक छोटा बाल बन जाती है because of these fibers. Okay, अगर स्टील फाइबर्स है तो यूनिफॉर्मली
स्प्रेडिंग हो जाएगा। स्टील फाइबर्स में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अदर फाइबर्स में लॉट ऑफ प्रॉब्लम है, मिक्सिंग में प्रॉब्लम है। दैट मीन्स पॉली फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में मिक्सिंग इज द मेजर ड्रॉबैक। मतलब यूनिफॉर्मली कंक्रीट के अंदर है फाइबर्स है, स्प्रेडिंग नहीं हो पाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स, ओरिएंटेशन मतलब क्या है? दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स है रैंडम। दैट मीन्स एक जगह पे क्या होती है, ये कट्टा एक साइड में हो जाती है, एक साइड हो जाती है, दूसरा कंक्रीट है, दूसरा साइड नॉर्मल कंक्रीट, एंड आधा पोर्शन है फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बनेगा, आधा पोर्शन है मान लीजिए नॉर्मल कंक्रीट रहेगा। सो द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स आल्सो रैंडम। These are the various problems fibers used in the low volume. अगर fibers है low volume यूज करते हैं, polypropylene fibers है when used in the relatively low volumes मतलब less than 0.5% of the cement weight. Next, marginally increases the peak load but maintains the sufficient flexural resistance beyond the peak load, and easy for mixing and no additional precautions and less rebound. दैट मीन्स अगर लो परसेंटेज में आपने मतलब वो ऐड कर रहा है, एट दैट टाइम ही इज सेइंग दैट इजी फॉर मिक्सिंग है इजी। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में मोर देन 3% 4% ऐड किया तो एक जगह पे मतलब वो चिपक जाएगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ द लार्जर वॉल्यूम फाइबर्स मतलब एट द लार्ज वॉल्यूम्स द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पोस्ट पीक एंड द resilience beyond the first crack. Now if you observe that if the fibers है अगर हाई वॉल्यूम में यूज कर रहा है 3% 4% में, जो ये पीक है ना, मतलब वो पीक आने के बाद है, दैट मीन्स ये पोस्ट पीक लोड एंड रेजिलियंस बियॉन्ड द फर्स्ट क्रैक, जो फर्स्ट क्रैक डेवलपमेंट के पहले पीक है जनरेट करेगा। कुड बी सम डिफिकल्ट इन द मिक्सिंग ड्यू टू दी बॉलिंग मतलब है छोटा छोटा बॉल्स बन जाएगा। दैट मीन्स ये घास का बॉल्स है ना, मतलब जस्ट लाइक ए ग्रास। दैट मीन्स ये एक मतलब कंक्रीट मिक्सर घूमता रहेगा, मतलब जो भी मिक्सर के अंदर है, जो भी उसको बोलते हैं टीथ रहती है इनसाइड, दैट मीन्स जो ग्रेटिंग्स रहती है, वो ग्रेटिंग के ऊपर है ना, मतलब ये पूरा ये फाइबर्स है ना, उसके ऊपर मतलब जस्ट लाइक है मतलब अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट होके जस्ट लाइक छोटा छोटा बॉल्स बन जाएगा। दैट मीन्स लॉस ऑफ द वर्केबिलिटी ये फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द फाइबर्स, पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स, आस्बेस्टॉस फाइबर्स है, ये पानी जितना भी पानी आप डाल रहे हैं वो पानी को ये कंज्यूम कर लेता है। सो लॉट ऑफ द वर्केबिलिटी प्रॉब्लम्स विल अराइजेस बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग, छोटा छोटा बॉल्स फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स आपका थिंकिंग क्या है, द फाइबर्स विल यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन दी कॉन्क्रीट, एंटायर कॉन्क्रीट में यूनिफॉर्मली मतलब रैंडमली स्प्रेडिंग हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, वंस आपने ये पॉलीपाइपलाइन पीसेस बना के आपने अंदर भेज दो मतलब कॉन्क्रीट मिक्सर में, ये पूरा ना छोटा छोटा बॉल्स फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द फाइबर लेंथ एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन। फॉर द सेम वॉल्यूम लॉन्गर फाइबर्स परफॉर्म द बेटर ग्रिप इन दी मैट्रिक्स, बिकॉज आपका जो भी लेंथ ऑफ फाइबर्स है थोड़ा मतलब टू मच लेंथ है तो मतलब वो फिर कंक्रीट में प्रॉब्लम्स आ जाएगा। बिकॉज मान लीजिए लेंथ इंक्रीज हो गए तो फाइबर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, मतलब अप टू व्हाट एक्सटेंट, हियर द क्वेश्चन। दैट मीन्स आपको बैलेंस करना पड़ेगा। साइट पे मान लीजिए फाइबर लेंथ है, मान लीजिए 1 इंच के जगह पे आपने 1.5 इंच कर दिया, 1.5 इंच के जगह पे 2 इंच कर दिया, 2 इंच के जगह पे 4 इंच कर दिया। दैट मीन्स आपका जो भी लेंथ मतलब आप बढ़ाता जा रहा है तो मतलब ऑब्वियसली ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली। बट द थिंग इज अप टू व्हाट एक्सटेंट, this you have to trial and error method, you have to check it. That means what is the suitable length of the fiber in that particular concrete grade. Suppose आपने M40 grade concrete बना रहा है, M40 grade concrete में फर्स्ट ट्रायल में फाइबर लेंथ है 1 इंच, लेंथ कट करके मतलब ट्रायल मिक्स बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1.5, नेक्स्ट स्टेप में एस्पेक्ट रेशियो फिर बढ़ा के 2 इंच कर दोगे, जिसमें ज्यादा मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है। क्योंकि आपका जो पर्पस ऑफ द फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज टू इंक्रीज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में देयर इज नो इन्फ्लुएंस। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मान लीजिए फ्लेक्सुरल हो, दैट मीन सॉरी दिस फाइबर हो, नॉर्मल हो, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो उतना ही आएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में देयर इज नो मच डिफरेंस, बट ओनली फ्लेक्सुरल में इंपैक्ट पड़ेगा। फ्लेक्सुरल का जो लेंथ ऑफ द फाइबर्स है मतलब आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे फिक्स करना पड़ेगा। फॉर द सेम फाइबर लेंथ increased volumes result in the increased performance. That means ये volume of fibers है ज्यादा कर दिया तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। बट द ओनली थिंग इज बॉलिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, मिक्सिंग का टाइम में छोटा छोटा बॉल्स फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड वर्केबिलिटी एक मतलब सेकेंड ड्रॉबैक है। हाउएवर डिफिकल्टीज इन मिक्सिंग, नाउ यू सी द पॉइंट केम।
However, the difficulties in mixing में difficulties नहीं है, major drawback है. मतलब fiber reinforced concrete I have tried once with the asbestos fibers. मतलब concrete पूरा concrete separate हो गया and ये जो fibers है ये corner पे मतलब मिक्सर में चिपक गया था. That means ये अरेस्ट हो गया था concrete मिक्सर में, जो भी उसको क्या बोलते हैं, that means इसके ड्रम मिक्सर में और पैन मिक्सर में एक रैकिंग रहती है. That means what you call, वो उसी के ऊपर है ना चिपक जाती है. दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड द लोअर वर्कबिलिटी रिजल्ट, दीज आर द डिफिकल्टीज. एंड कॉमनली अडॉप्टेड द लेंथ ऑफ फाइबर इज इक्वल टू कितने 5 सेंटीमीटर. मैक्सिमम लेंथ है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर मतलब इमेजिन करो, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर से लेके 20 mm से लेके 2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर का बीच में नॉर्मली यूज करता है. डायमीटर कितने हैं 0.4 mm. 0.4 mm ऑल्सो वेरी हाई. 0.4 mm मतलब है इमेजिन करो वेरी थिक. दैट मीन्स ये फाइबर है, दैट मीन्स एस्पेक्ट रेशियो L/D है 60 to 100 के बीच में होना चाहिए. एज पर द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द लॉट ऑफ रिसर्चर्स, एस्पेक्ट रेशियो शुड बी 60 to 100. जितना एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा रहेगा, नियर टू 100 है, तो आपका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बढ़ेगा. नॉर्मली द लेंथ ऑफ द फाइबर्स है 50 mm is the highest length and minimum length है 20 mm. And the diameter is, maximum diameter is 0.4 mm diameter. Aspect ratio 60 to 100. These 3 points you have to take care while mixing in the, you are using in the fiber reinforced concrete. Next, this is not the effect of the L/D ratio of the fibers. Next, concept of the toughness. Toughness is expressed as the area under the strain curve corresponding to the certain multiples of the strain in the first crack. Actually, this ASTM code, generally we don't go for this code. Now, types of the fibers and their properties. Polypropylene fibers है, the specific gravity is this much. Steel fibers है, steel fibers देखो, that means 7.86, very high specific gravity. Next, glass fibers and polyester fibers, asbestos fibers and concrete for the comparison. That means ये some fibers है, he is compared with the all the tensile strength and E value, that means giganewtons per mm square, and elongation failure and VF. VF मतलब है, that means जो VF in the percentage means ये VF मतलब है the strain between the peak and ultimate. Next, ये जो comparison of the fibers है, he has used the polypropylene fibers composites very well with the steel and weight basis for the flexural strength and response after the first cracking. And he has compared with the polypropylene fibers with the steel fibers. Next, characteristics of the fibers. The steel fibers, rounded steel wires around the steel wires है, maximum है 1 mm diameter. 1 mm जो बाइंडिंग वायर बोलते हैं, मतलब वो जो छत डालता है ना, छत में तो जो बड़ा बड़ा रॉड का बीच में मेन रीइंफोर्समेंट एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट को टाई अप करने के लिए एक बाइंडिंग वायर यूज करता है. मतलब मैसन है, बार बेंडर है, मतलब एक बाइंडिंग वायर. वही बाइंडिंग वायर को, उसका जो थिकनेस है 1 mm to 1.5 mm रहता है, वो बाइंडिंग वायर को स्मॉल पीसेस में कट करके, दैट मीन्स मैक्सिमम लेंथ इज 60 mm एंड मिनिमम लेंथ इज 19 mm. 20 mm से लेके 55 mm लॉन्ग में आप है, that means 0.45 mm से लेके 1 mm diameter है, that means steel fibers है. Normally we can use it as a steel fiber reinforced concrete. Next, flat sheet fibers, that means 0.35 to 0.65 thick. These are called the sheet fibers, small sheets, just like a papers. And 1 to 2 mm wide, that means 1 mm to 2 mm. These sheet fibers also nowadays available in the market. And 19 mm to 60 mm long and wavy मतलब है just like ऊपर नीचे रहती है, that means just like curling hair. मतलब कुछ लोग का बाल देखो, मतलब कर्ली हेयर रहते हैं, सम बॉयज है, मतलब उसका जो सिर में बाल है कर्ली हेयर है, दैट मींस जस्ट लाइक वेवी, वो ऊपर नीचे. अगर आपने जो कर्ली यूज किया है, देन आपका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है और बढ़ेगा. मान लीजिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो भी फाइबर्स है, अगर प्लेन फाइबर्स है, वो ही प्लेन फाइबर्स को आप कर्ली बनाओ, दैट मीन्स वेवी बनाओ. वेवी मतलब है लाइक दिस, दैट मीन्स जस्ट लाइक ऐसा वी शेप में, ऐसा कर्ली, मतलब ऐसा कर्ली बनाओ. कर्ली बनाती तो आपका जो भी बनेगा, दैट मीन्स वेवी एंड क्रिम्पल्ड एंड एनलार्ज्ड एंड्स टू इंप्रूव दी बटन्स बोलते हैं. बटन्स मतलब है जो ये जो फाइबर का एंड्स में एक छोटा निब्स,
मतलब छोटा छोटा निब्स इंट्रोड्यूस करता है। अदरवाइज है ना, ये एंड में, स्ट्राइट एंड में एक छोटा ऐसा वी शेप में ऐसा बना दो, दैट मीन्स जस्ट लाइक वी शेप बनाओ। उसमें से क्या होगा, दैट मीन्स जो आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज प्लेन बार से आपका वेवी बार एंड दिस व्हाट यू कॉल्ड बटन्स केसेस में आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इंप्रूव दी बॉन्ड स्ट्रेंथ। एंड पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स, पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नीचे दिया है, उसका जो वॉल्यूम में कंक्रीट में कितने कितने 0.6 to 1.8 kg, मतलब वो मात्र 2 kg है। ये क्यूबिक मीटर कंक्रीट में पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स है, ज्यादा नहीं डालना, वो मात्र 2 kg, ये 2 kg मात्र डालना। लेकिन है मिक्सिंग के टाइम में मतलब लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट मींस मिक्सिंग के टाइम में पूरा पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होगा, एक जगह पे जाके अरेस्ट हो जाएगा, पूरा पॉलिन फाइबर से एक साइड सेपरेशन हो जाएगा। alkali proof and no corrosion and economical alternative and bond strength improvement and adding the buttons at the ends। मैंने बोला ना, मान लीजिए ये फाइबर लेंथी फाइबर है, ये लेंथी फाइबर के एंड में क्या है, जस्ट लाइक है थोड़ा एक छोटा बटन इंट्रोड्यूस करो। दैट मीन्स मैंने एक कंक्रीट के अंदर है, मैंने एक रॉड, स्ट्राइट रॉड है, इंसर्ट किया है। दूसरा केस में क्या किया था, स्ट्राइट रॉड को आखिरी में क्या किया था, थोड़ा मैंने बेंड करके इंट्रोड्यूस किया। जब भी खींचोगे, बाहर खींचोगे, जो भी सेकंड केस में मैंने रॉड को बेंड करके इंसर्ट किया है, वो बाहर निकलना मुश्किल है। क्यों? दैट मीन्स बिकॉज आपने जो एंड है ना, आखिरी एंड में कंक्रीट जो सरिया का एंड में आपने थोड़ा मतलब बेंड कर दिया, वो बेंड का वजह से कंक्रीट से बाहर आएगा नहीं है। दैट मीन्स सिमिलरली ये बटन्स अगर एंड में इंट्रोड्यूस किया है, देन आपको मतलब वो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। नाउ ये सी, ये देखो, अगर आपने ये फाइबर है मतलब स्ट्राइट फाइबर है, ये स्ट्राइट फाइबर इज फर्स्ट केस। सेकंड में क्या है, लास्ट में क्या है, ऐसा आखिरी में ऐसा एल शेप में मतलब बेंड कर दिया। अदरवाइज लास्ट में एक बटन इंट्रोड्यूस किया। बटन मतलब है कुछ छोटा बड़ा शर्ट का गुंडी कैसे है, शर्ट का जो बटन है ना, ऐसा लास्ट में एक है वेल्डिंग कर दिया। इस वजह से क्या है, ये फाइबर्स को मतलब वो एडिशनल मतलब वो फाइबर एडिशनल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज ये स्ट्राइट फाइबर है, मतलब वो अगर बाहर खींचोगे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ केस में बाहर खींचोगे, मतलब वो कम लोड ले लेगा। अगर मान लीजिए एंड में जैसा ये बंडल्स है और ये व्हाट यू कॉल बटन्स है, इन दिस केस आर रिंकल्स है। रिंकल्स मतलब है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, कर्ली वेवी। अगर यही फाइबर को मैं एक काम करता हूँ जैसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी को मतलब जस्ट लाइक है वी 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 जैसा इसी को मोड़ देता हूँ। मोड़ने के बाद है अब कंक्रीट में मिला दो, तब क्या होगा, आपका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है और बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज आपका जो प्लेन बार है तो क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है कम रहेगा। आपका ये सब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर दिया तो उसको मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है ज्यादा ले लेगा। क्योंकि मतलब वो एक बार है, मतलब ये दिस इज नथिंग बट ए बार, दैट मीन्स वेरी थिन बार। थिन बार मतलब 1 mm डायमीटर, 1 mm में डायमीटर है बॉटम में, मतलब जो बॉटम पोर्शन में, दैट मीन्स टॉप है कंप्रेसिव जोन है, नीचे का टेंशन जोन है। ये टेंशन जोन में अगर ये बार्स इंट्रोड्यूस करने में आपका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, लॉट ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है कंक्रीट में बढ़ जाएगा। फॉर दैट पर्पस यही स्टील फाइबर्स को आपको ग्लूडेड टुगेदर विथ द बंडल्स आर इजियर डिस्पर्शन इन द इंप्रूव्ड बॉन्ड। इंप्रूव्ड बॉन्ड के लिए इनको ऐसा आखिरी में कुछ बटन्स इंट्रोड्यूस करो, छोटा 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 छोटा, मतलब वो वर्टिकल वॉशर्स बोलते हैं ना, ये वॉशर्स है, लास्ट में वेल्डिंग कर दो, है ना, तब इसका जो ताकत बढ़ जाएगा। नाउ ये फाइबर्स देखो, जो भी ये फाइबर्स है, दैट मीन्स पॉलीप्रोपाइलिन है ना, ट्विस्टेड फाइबर्स है, ट्विस्टेड फाइबर्स है, प्लेन फाइबर्स एंड ट्विस्टेड फाइबर्स है। दैट मीन्स 400D, दैट मीन्स इसका जो डायमीटर है दैट मीन्स 400 माइक्रॉन्स, दैट मीन्स वेरी माइक्रो फाइबर्स है। नेक्स्ट, various areas of the PPE application, that means fiber reinforced concrete application, especially concrete roads में applicable है। एयरपोर्ट दैट मीन्स रनवेज में, टैक्सी वेज में एंड ओवरले डिजाइन में, वाइट टॉपिंग रोड्स में ये फाइबर रिइंफोर्स। बट वन थिंग इज ट्रू, दैट मीन्स रोड्स के लिए कभी भी स्टील फाइबर यूज मत करियो, डोंट यूज दी स्टील फाइबर। अदरवाइज क्या होगा, उसका जो भी जस्ट लाइक ए शार्प नाइफ जैसा एक्ट करेगा। मान लीजिए कुछ पार्ट होल बन गया है, उसी से जो भी फाइबर्स है, स्टील फाइबर्स है, 1 mm डायमीटर ना, दैट विल मतलब कांटा जैसा लगेगा। कांटा, हिंदी में कांटा मतलब है बबुल पेड़ को कांटा रहता है ना, जस्ट लाइक ए सुई जैसा, मतलब वो पंचर हो जाएगा गाड़ी को। एंड कोई भी आदमी है नीचे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया था, मतलब उसका बॉडी को पूरा स्क्रैचेस आ जाएगा। सो फाइबर रिइंफोर्स्ड स्टील फाइबर्स शुड नॉट बी यूज्ड इन द पेवमेंट्स।
स्पेशली रनवेज एंड एयरपोर्ट रनवेज के लिए आपका फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है, पॉलीप्रोपाइलिन, आस्बेस्टॉस है ना, रिक्रॉन फाइबर्स, वो फाइबर्स यूज करो। नेक्स्ट कंक्रीट ब्रिजेस एंड ब्रिज डेक स्लैब्स एंड वेयरिंग कोर्सेस। वेयरिंग कोर्स मतलब है टॉप मोस्ट कोर्स। देखो ये है फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है, ये रोड का जो टॉप मोस्ट है पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स है, दे हैव यूज्ड। नेक्स्ट पाइल फाउंडेशंस है, पाइल कैपिंग है, शॉर्टक्रीट। शॉर्टक्रीट मतलब है जो भी मतलब टनल के ऊपर है, मान लीजिए आपने लाइनिंग कर रहा है एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड पियर्स। मान लीजिए कुछ पियर के ऊपर है, मतलब कैविटी बन गया है, क्रैक्स आ गया, उसको ग्राउटिंग करना, एबैटमेंट में क्रैक्स आ गया, एट दैट टाइम शॉर्टक्रीटिंग मतलब है सीमेंट प्लस दिस फाइबर्स, जस्ट लाइक स्मॉल फाइबर्स मिला के मतलब वो वेरी हाई जेट स्पीड से मतलब वो क्रैक्स को फिल कर दोगे। सो दैट इज कॉल्ड शॉर्टक्रीटिंग। दैट मीन्स जो स्टेबिलिटी ऑफ द हाई स्लोप्स, मान लीजिए ये पहाड़ भाई, ये हाई रेज्ड पहाड़ है, दैट इज ए हिल, मतलब ये हिल स्लोप से ये बोल्डर्स है, नीचे गिरना नहीं चाहिए। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू गिव दी शॉर्टक्रीटिंग, मतलब जो भी कैविटीज है, क्रैक्स है, उसको क्या करोगे, पहले तो नेलिंग करोगे, फिर इसके बाद आयरन फेंसिंग करोगे, फिर इसके ऊपर शॉर्टक्रीट कंक्रीटिंग 2-3 लेयर्स करोगे। नेक्स्ट अदर एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, ब्लास्ट रेसिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ब्लास्ट रेसिस्टिंग स्ट्रक्चर्स मतलब क्या है, स्पेशली बंकर्स, स्पेशली इन दी वॉर टाइम में पाकिस्तान का जो मैसा है, दैट मीन्स शेलिंग कर रहा है एट दैट टाइम है ना, जो अपना सोल्जर्स है बचने के लिए वो लोग क्या है, मतलब कुछ छोटे मोटा स्ट्रक्चर्स बना देता है, बंकर्स बोलते हैं। वो बंकर्स है मतलब ब्लास्ट रेसिस्टिंग स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। मान लीजिए पाकिस्तान का जो शेलिंग आके हिट हो गया, तब भी मतलब वो ये रेसिस्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्लास्ट दैट मीन्स जो एक्सप्लोजिव को भी मतलब वो रेसिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सुरल हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इंप्रूव्ड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी मतलब क्या है, जस्ट मतलब रबर बैंड देखो, मतलब इफ यू आर स्ट्रेचड इट मतलब लेंथी बन जाएगा। मतलब बिटुमन देखो ना, डक्टिलिटी टेस्ट करोगे, क्या करोगे, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन का बिटुमन लेके, दैट मीन्स 27 डिग्री टेम्परेचर में पानी गर्म करके मिशन यूज करोगे, देन वो दागा है ना, दूर ऐसा दागा है स्प्रेड करेगा। अगर 50 सेंटीमीटर के पहले टूट गया, आधा मीटर के पहले, वो बिटुमन है, बेकार बिटुमन है। अगर 50 सेंटीमीटर के ऊपर तक दागा आ गया है, थ्रेड मतलब खींच गया है, मतलब इट इज स्प्रेडेड अप टू मोर देन 50 सेंटीमीटर, देन दैट इज ए वेरी गुड बिटुमन। समझ आएगा ना। सो अदरवाइज द बिटुमन इज क्रैक्ड बिटुमन। क्रैक्ड बिटुमन मतलब इट इज ए ब्रिटल नेचर, पीस ऑफ चाक देखो तुरंत टूट जाती है। इंप्रूव द डक्टिलिटी फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। अगर स्ट्रक्चर है, अर्थक्वेक स्ट्रक्चर बना रहा है, उसमें आपका ये फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज बेस्ट कंक्रीट। एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स मतलब क्या है, ये स्पिलवे गेट्स है, एंड जो बॉटम में यापरान गेट्स है, दैट मीन्स जो स्कावर स्लूइस है, दैट मीन्स इन केस ऑफ द सिल्टिंग हो गया डैम का, जो बॉटम का जो सबसे बॉटम का जो गेट्स है, मतलब स्कावर स्लूइस बोलते हैं, वो स्लूइस गेट्स है, ओपन कर दिया तो जितना भी टर्बिडिटी है एंड जो भी डिपोजिशन है मिट्टी वगैरह वो सब है डाउन स्ट्रीम साइड भाग जाती है। तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में ये वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द fiber and a design approach I will see in the next class, because today one student is absent. Okay, I will stop at this stage. Sir, I am present. हाँ ओके आ गया। सर एक्चुअली 10 मिनट्स लेट हो गया था। हाँ ओके कोई बात नहीं हाँ ठीक है। टुडे सर कुछ